तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी हुई है। कल अमेरिका पहुंचे थे व्लादिमीर जेलेंस्की और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस हुई है। दोनों नेताओं में ये बहस काफी देर तक चलती रही और मीडिया के सामने हुई। समझौते को लेकर ये बहस हुई है। समझौते का प्रस्ताव जेलेंस्की ने ठुकरा दिया। यहाँ युद्ध विराम को जेलेंस्की तैयार नहीं है। ओवल हाउस में हुई दोनों की मुलाकात और ट्रंप ने कहा अगर यही कंडीशन रहती है तो हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि आपको इसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसे में बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे हथियार की वजह से युद्ध में लंबा टिक पाए हैं आप। यानी कि जेलेंस्की को ये सीधे सीधे संदेश ट्रंप की ओर से दिया गया और ये कहा कि यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं है, आपका देश बड़ी मुसीबत में इस वक्त है। यूएस के बिना यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ता। ये ट्रंप की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया कि अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो यूक्रेन अब तक इस युद्ध में टिक नहीं पाता। साथ ही जब तीखी बहस दोनों के बीच में हुई तो किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाया है। So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact? 2015. 2014 is 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, what the situation is the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broke the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start. ये उस बहस की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां जेलेंस्की और ट्रंप आपस में ही अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करते रहे। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, कल यही लगभग सुबह का टाइम था जब हम बता रहे थे कि जेलेंस्की पहुंचने वाले हैं, आज इन मुद्दों पर बात होगी, ये बड़े समझौते होंगे, और अब तस्वीरें कुछ और ही नजर आई। दोनों नेता बहस करते हुए दिखे और कोई समझौता नहीं हुआ। देखिए जी, बिल्कुल रचना, जिस तरीके से बहस की ये तस्वीरें सामने आई है और मीडिया के सामने ये बहस हो रही थी, और इस बहस के पीछे की जो वजह है, दरअसल अगर आप देखें तो जिस तरीके से जेलेंस्की को पहले यूएस से, कनाडा से और तमाम अन्य देशों से जो मदद मिलती रही है, उसके बाद इतना लंबा युद्ध खिंच गया, तो शायद जेलेंस्की को अब लग रहा होगा कि वो रूस को जो है वो शिकस्त दे सकते हैं या रूस से मुकाबला कर सकते हैं। जबकि ट्रंप ने जो है साफ तौर पे कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है और अब ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में साफ तौर पर जब बातचीत हो रही थी, उसी बीच में
ट्रंप ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो ये गलत है और जिस तरीके से ये चल रहा है ये तीसरे युद्ध की ओर आगे बढ़ेगा। और ये जो हीटेड आर्गुमेंट था जिसे हम बहस कर रहे हैं, ट्रंप ने साफ कहा कि आपके पास इतने ऐसे कार्ड्स नहीं है, यू डोंट हैव कार्ड्स टू टेक सच स्टैंड। तो उन्होंने साफ कहा कि आप उस पोजीशन में नहीं हैं जिस वजह से आप इस तरह का स्टैंड ले सकें कि आप कहें कि युद्ध में जो है वो बार्गेनिंग हो सकती है या तमाम चीजों को लेकर। इस चीज को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर जो है वो ज़ेलेंस्की को चेता दिया है। आपने बताया कि ट्रंप ने सीधे सीधे चेता दिया, ज़ेलेंस्की ने बता दिया कि इस तरीके से कोई समझौता हो नहीं सकता, दोनों के बीच में टकराव हुआ। अच्छा, जब दो नेता आपस में बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत होती है, फिर मीडिया आती है, तो कई सवाल इस पर उठते हैं और वही सवालों के जवाब जानने के लिए मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे भी हुए थे। इस पर आगे मैं सवाल करूं, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, जो आप रहिएगा। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय देशों ने